Hi students. So till now we have discussed about the placenta. What is placenta? What is the structure? What do you mean by placenta? How it develops or how it forms in case of human being, and what is its function? तो placenta क्या है? कैसे डेवलप होता है? During the entire what is the process by which the placenta is developed? And what are the important function placenta is actually perform, that also I have discussed in the last video lecture. So now onwards, or in today's lecture, we'll talk about the different types of placenta. Then after the types of the placenta is discussed, then we'll talk about the extra embryonic membrane, the different types of extra embryonic membrane क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. Then after that we'll talk about parturition. So we'll try to discuss all the three topics in today's video lecture. So let's start. Placenta. See, placenta on the basis of histology. That means if we take a section, or like if you take a placental section, histology means if you take we take the section and if you study the tissue level, so we can find there are basically 6 layers which separate the maternal blood from the fetal blood. fetal blood से maternal blood को अलग करता है. ऐसे हमारे पास हम अगर देखेंगे हिस्टोलॉजी को तो देखेंगे देयर आर 6 लेयर्स, उसपे 6 लेयर्स हैं. ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कैसे 6 लेयर्स बनते हैं. पहला, दिस इज योर कोरियन, दिस इज योर कोरियन. ठीक है, और कोरियोनिक विलाई, तो ये एम्ब्रायनल पार्ट है और फीटल पार्ट है. तो ये फीटल ब्लड वेसल है, तो उस ब्लड वेसल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है तो वो एक लेयर हो गया. उसके बाद इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट इज सेकंड लेयर. देन कोरियन, द लेयर ऑफ द कोरियन, इट इज आल्सो द थर्ड लेयर. अभी मेटरनल की बॉडी के पार्ट में अगर देखेंगे तो इट इज हैविंग एंडोमेट्रियल वॉल और एंडोमेट्रियम, दैट इज द फर्स्ट लेयर. Then there is connective tissue, and then inside we are having the blood vessels, that is outermost membrane of the blood vessel is also third layer. So if you count, this is the first layer, the blood vessel layer of the the fetus, that is your first layer. Then connective tissue is second layer, chorion is third layer. Then mothers, in case of maternal body, the endometrium is fourth, connective tissue is fifth, and again the blood vessels is sixth. So total कितने layers है? 6 layers. ठीक है, so in that way it is 6. So please try to understand. So there are 6 layers which separate the maternal blood from the fetal blood. अगर हम histology देखेंगे तो कितने लेयर डिफरेंट कितने लेयर हैं जो कि मैटरनल ब्लड से जो फीटस जो ब्लड है या फीटल ब्लड है उसको अलग करता है. There are 6 layers. ठीक है, so there are 6 layers which separate the maternal blood from the fetal blood. Now again this pattern, ये जो 6 लेयर के पैटर्न हमने भी देखा, मतलब जो 6 लेयर्स है उसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है. तो on that basis also we have divided the placenta in different categories. नॉर्मली हमने क्या देखा, अगर हम प्लासेंटा का सेक्शन लेंगे, अगर हिस्टोलॉजिकल लेवल में स्टडी करेंगे, टिश्यू लेवल पे स्टडी करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि जो आपका ब्लड वेसल्स मैटरनल ब्लड जो ब्लड है उसके साथ जो आपके फीटल ब्लड वेसल्स है या ब्लड है उसके बीच में कितने लेयर्स हैं? टोटल 6 लेयर्स है. लेकिन इसमें ये जो 6 लेयर्स का जो आपका स्ट्रक्चर है या फिर जो पैटर्न है, इसमें बहुत सारे चेंजेस है. सो ऑन दैट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज of the different way the 6 layers are arranged. So on that basis we have divided the placenta in further categories or further types. So let us discuss the first one. Number 1, epitheliocorial. Epitheliocorial is the first type. इसमें क्या होता है? अच्छा, in this case, or it is sorry, here you should write it is in. This is not it. So please correct it. This is not in. This is not it. This is in. So please correct. So in this case, all 6 layers are as it is. तो इसमें फर्स्ट केस में क्या है
ये सारे जो लेयर्स है वो जैसे मतलब बनने चाहिए, जैसे होने चाहिए वैसे ही रहते हैं। एंड सेपरेट द मैटरनल एंड फेटल ब्लड। तो पहला कैटेगरी क्या है, जो हमने देखा कि 6 जो लेयर्स है आपके प्लासेंटा में, अगर हम हिस्टोलॉजी के लेवल में देखेंगे, टिश्यू लेवल पे स्टडी करेंगे तो वो सारे जो जैसे है वैसे इंटैक्ट रहते हैं, कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं होता है। तो वो होता है फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं एपिथेलोकोरियल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, सिंडेस्मोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस केस ओनली 5 layers are present in between the fetal and maternal blood vessel। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा, नॉर्मली हिस्टोलॉजी लेवल में क्या होता है 6 लेयर्स होते हैं, बट इस कैटेगरी में सिंडेस्मोकोरियल जो टाइप है, इस टाइप के प्लासेंटा में 6 की जगह पे कितना होता है, इंस्टेड ऑफ 6 इट इज हैविंग 5 layers which separate the fetal and maternal blood vessels। तो यह डिफरेंस है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एंडोमेट्रियल लाइनिंग गेट डाइजेस्टेड। अब इनमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो लाइन होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो बाकी सारे लाइनिंग है। आप देखिए कि हमने क्या देखा था, पहले है ये फीटल जो आपका पार्ट है वो है फीटल ब्लड वेसल है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद कोरियन है, उसके बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम था, फिर जाके कनेक्टिव टिश्यू था, फिर जाके आपका ब्लड वेसल था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंडोमेट्रियम जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, नहीं है एंडोमेट्रियम। तो अभी कितने हो गए, इसीलिए कितने लेयर्स बच गए आपके मैटरनल और पैटर्नल जो ब्लड वेसल उसके बीच में, 1 2 3 4 5, ये ब्लड वेसल का एक, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर कोरियन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर ब्लड वेसल। टोटल कितने हो गए, 5 लेयर हो गए। सो दैट इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट एंडोथीलोकोरियल प्लासेंटा। नेक्स्ट क्या है, एंडोथीलोकोरियल प्लासेंटा। इसमें क्या होता है, इन दिस केस वन मोर लेयर इज गॉन। जैसे पिछले केस में हमने क्या देखा था, एंडोमेट्रियम वॉल चला गया था, डाइजेस्ट हो गया था। अब इसमें क्या है कि और एक लेयर डाइजेस्ट हो जाता है, और एक लेयर खत्म हो जाता है, नहीं रहता है इनके केस में। ठीक है, सो द मैटरनल ब्लड वेसल is in direct contact with the chorionic villi। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एंडोमेट्रियम वॉल भी नहीं है और जो कनेक्टिव टिश्यू वो भी नहीं है। तो कोरियन जो है, जो आपका फीटल ब्लड वेसल का जो फीटल बॉडी में जो या फीटस में जो कोरियन है, वो डायरेक्ट जो आपकी मदर बॉडी है उसके ब्लड वेसल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, यहाँ पे ये फीटल ब्लड वेसल, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, फिर ये कोरियन, कोई भी एंडोमेट्रियम वॉल नहीं, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू नहीं, डायरेक्ट जो कोरियन है वो ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए इसमें लेयर एक और कम हो गया 6 लेयर से। पहले क्या एक कम हुआ था, एंडोमेट्रियम वॉल गया था, अभी क्या है कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है वो भी चला गया, वो भी नहीं रहता है केस में। ठीक है, और क्या होता है कि कोरियन जो है वो ब्लड वेसल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो लेयर कितने बच गए, 4 लेयर्स बच गए। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, ऐसे प्लासेंटा में 4 लेयर होता है, ब्लड वेसल, फीटस का ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, कोरियन और मैटरनल ब्लड वेसल। ठीक है, तो इसमें 4 या वी कैन से 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस केस। ठीक है, and then we call it as endotheliocorial, and this is called endotheliocorial। ठीक है ना, so let us go to the next one, next category, that is your hemochorial placenta। hemochorial placenta इसमें क्या होता है, now hemochorial placenta seen in case of human। hemochorial placenta जो है वो इंसान हमारे केस में दिखता है, ये वाला टाइप। and in this case the blood vessel layer is also get digested। अब इसमें क्या है कि जो ब्लड वेसल का जो लेयर है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है हमारे केस में। इंसान के केस में ये वाला पैटर्न हमें, ये वाला टाइप हमें मिलता है, जिसे कहते हैं हेमोकोरियल प्लासेंटा। और इसमें क्या होता है कि जो अभी हमने क्या देखा कि ब्लड वेसल के साथ कोरियन अटैच्ड है ना, फीटस जो आपके एम्ब्रायो में कोरियन है वो ब्लड वेसल के साथ अटैच है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हमारे जो हेमोकोरियल जो ह्यूमन में होता है, उसमें क्या ये ब्लड वेसल का जो लेयर है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, the blood vessel layer is also get digested। That means the chorion is dipped
इनसाइड द ब्लड डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, जो कोरियन है अभी ब्लड वेसल अभी डाइजेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक साइनस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे जो साइनस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड जो है यहाँ प्रेजेंस रहेगा, ब्लड पूल जैसा रहेगा, और उसके अंदर ये आपका जो कोरियन है वो डिप्ड रहेगा, डिप्ड इन रहेगा, इट इज डिप्ड इन साइड द ब्लड डायरेक्टली बिकॉज द ब्लड वेसल layer is also get digested in this case. ठीक है, so those are the all different categories. If you see, if you categorize the placenta on the basis of histology, right? Now we'll talk about some other classification, other pattern, other different types of classification of or the types of placenta on the basis of different categories. Now next is on the basis of the layer that forms the placenta, that is the origin wise. Now, if you categorize the placenta on the basis of the layers that forms the placenta, that is the origin wise. अभी origin wise अगर हम divide करेंगे placenta को, तो following categories में हम divide कर सकते हैं. So let us discuss. If you divide the placenta in the according to origin, then these are the following types. Types are there. Let us discuss. First is yolk sac placenta. पहला क्या होगा, yolk sac placenta. इसमें क्या होता है, the placenta which is forms by yolk sac और कोरियन. अब इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा वो कहां से बनता है, yolk sac से बनता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, yolk sac प्लासेंटा. ठीक है, तो प्लासेंटा कहां से बनता है, ऑरिजिन क्या है इसका, yolk sac, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, yolk sac प्लासेंटा. एग्जांपल किसमें हमें दिखेगा, ये मार्सुपियल्स लाइक कंगारू. कंगारू में हमें ऐसा दिखता है, मार्सुपियल्स जैसे कंगारू, उसमें हमें ऐसा दिखता है. मार्सुपियल मतलब पाउच लाइक ऑर्गेनिज्म कैरिंग हैविंग पाउच, दैट इज मार्सुपियम. मार्सुपियम का मतलब होता है पाउच, इसीलिए से वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, मार्सुपियल. आई होप यू हैव स्टडीड इन एनिमल किंगडम. नाउ एलेंटॉइट और एलेंटॉइस प्लासेंटा और एलेंटॉइक प्लासेंटा. ठीक है, सो लेट्स सी. इट डेवलप्स फ्रॉम द टू एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. एलेंटॉइक प्लासेंटा कहां से डेवलप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम टू एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. क्या क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, पहला होता है एलेंटॉइक एंड दूसरा होता है कोरियन. ठीक है, तो एलेंटॉइक और कोरियन ये दो लेयर से जो आपका प्लासेंटा बनता है उसे हम बोलते हैं एलेंटॉइक प्लासेंटा. ठीक है, बनता है दो आपके कोरियन और एलेंटॉइक से, लेकिन नाम हमने क्या दिया है, एलेंटॉइक प्लासेंटा. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, सो द प्लासेंटा व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम एलेंटॉइक और एलेंटॉइस and chorion, then that placenta is known as एलेंटॉइक प्लासेंटा. एग्जाम्पल क्या है, प्राइमेट्स. प्राइमेट है इसका एग्जाम्पल. प्राइमेट्स में हमें इस तरह के प्लासेंटा दिखता है. ठीक है, नाउ द कोरियन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लासेंटा फॉर्मेशन. तो यहाँ पे एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना हमेशा याद रखना होगा कि जितने तरह के भी प्लासेंटा बनेंगे उसमें सब में कोरियन तो मस्ट है, कोरियन तो कॉमन रहेगा. ठीक है, कोरियन इज ऑलवेज प्रेजेंट, सो कोरियन इज कॉमन इन ऑल द प्लासेंटा. ठीक है, irrespective of the different types of placenta, कोरियन is common. So कोरियन जो होगा वो प्लासेंटा जो बनेगा उसमें हर प्लासेंटा जो प्लासेंटा जब बनेगा तो उसमें कोरियन कॉमन होता है. So that is very important. Next is amnion does not participate in the placenta formation. जैसे कोरियन प्लासेंटा फॉर्मेशन में हर टाइप के प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वैसे ही एमनियन जो है वो क्या करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता. ठीक है, तो दोनों अलग अलग है. कोरियन हर प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एमनियन किसी भी प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, नाउ बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द सेकंड टाइप. द थर्ड क्लासिक पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन इज बिहेवियर ऑफ द प्लासेंटा ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ठीक है, अब प्लासेंटा का जो बिहेवियर है पार्चुरेशन के समय में, उसके आधार पे हमने प्लासेंटा को डिवाइड किया है. ठीक है, अब पार्चुरेशन क्या है थोड़ा उसको भी आपको समझना होगा. पार्चुरेशन मतलब देखिए, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्लासेंटा फॉर्मेशन हो गया. अभी क्या होगा, एम्ब्रायो डेवलप करेगा. अब कब तक डेवलप करेगा, जब तक ये कंप्लीटली फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता और रेडी नहीं हो जाता आपके मदर्स बॉडी से बाहर आने के लिए, तब तक, है ना. तो इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. इंसान के केस में वो नॉर्मली आपका 280 डेज और 9 मंथ्स का होता है. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली, तो इट इज वेरिएबल, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है. आफ्टर दैट
the baby will come out, it will be expelled out from the mother's womb, and that is called birth of the baby, and that process is called actually parturition. पार्चुरेशन में जो है ना प्लासेंटा जो है वो टूट जाएगा एक्चुअली, और अम्बिलिकल कॉर्ड टूट जाता है और प्लासेंटा जो है वो एक्चुअली निकल जाता है, ठीक है, मतलब सेपरेट हो जाता है प्लासेंटा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, सेपरेशन ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फिटस फ्रॉम द मदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। उस समय प्लासेंटा का क्या क्या बिहेवियर होगा, क्या क्या डिफरेंट टाइप से पार्चुरेशन प्लासेंटा बिहेव करता है, उसके बेसिस में हमने डिवाइड किया है आपका डिफरेंट टाइप्स के प्लासेंटा को। फर्स्ट, द बिहेवियर ऑफ द प्लासेंटा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन इज, फर्स्ट वन इज डेसिडुएट प्लासेंटा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डेसिडुएट प्लासेंटा। इसमें क्या होता है, when the placenta is actually present in both maternal and fetal blood, the fetal body is lost. प्लासेंटा अगर मैटरनल बॉडी में और फीटल बॉडी में दोनों में पार्चुरेशन के बाद लॉस हो जाता है, या आप बोल सकते हैं खत्म हो जाता है, उस तरह के प्लासेंटा को हम क्या बोलते हैं कि डेसिडुएट प्लासेंटा, ठीक है। तो डेसिडुएट प्लासेंटा मतलब व्हेन द प्लासेंटा actually both in maternal and fetal body is lost, then that type of placenta is called deciduate placenta, ठीक है। After the baby delivers, ठीक है, after the baby delivers even the deciduous part is also lost, इसी को हम बोलते हैं deciduate placenta। मतलब क्या होगा, पहले तो जब क्या होगा बेबी, when the baby is coming out, so first of all it will separate from the placenta and then it will come out, and the placenta is lost from the baby, the placental part which is in the fetal body, that will also lost, and which is also present in the body of the mother, that will also lost, ठीक है। and इसी को हम बोलते हैं deciduate placenta। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा है मैटरनल पार्ट में बॉडी में, इट विल रिटेन बाय द फीमेल एनिमल बॉडी। जो बच जाता है प्लासेंटा पार्ट आफ्टर द पार्चुरेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी और द मैटरनल बॉडी, इट विल रिमेन इनसाइड, ठीक है, वो रह जाएगा, वो लॉस नहीं होगा। जैसे ह्यूमन ने क्या देखा, वो लॉस हो जाता है, वो रह जाएगा, लेकिन के केस में क्या होगा, इट विल बी देयर, इट विल रिमेन। सिर्फ क्या होगा, फीटल प्लासेंटा जो है वो लॉस होगा, ठीक है। तो फीटल प्लासेंटा लॉस होगा, लेकिन आपका जो फीमेल प्लासेंटा वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा डेसिडुएट। इसमें क्या होता है, इन दिस केस neither the mother nor the fetal placenta is lost। इसमें क्या होता है, मदर का या जो फीटस का है, दोनों का ही प्लासेंटा बिल्कुल लॉस नहीं होता, एंड इसमें क्या होता है, ओनली द फीटस गेट डिलीवर एंड एवरीथिंग इज रीअब्सॉर्ब बाय द बॉडी आफ्टर डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि मदर्स बॉडी में जो प्लासेंटा पार्ट रहता है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कर लेता है मदर्स का बॉडी, और फीटल बॉडी में जो प्लासेंटा होता है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ये लॉस नहीं होता। सो दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा डेसिडुएट टाइप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, now we can again divide the placenta in on the basis of distribution of villi। villi के distribution के भी basis पे हम divide कर सकते हैं placenta को different categories पे, different types में। पहला है diffused placenta। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा है it is present all over, ठीक है। so during the embryonic development it is present all over, ठीक है। मतलब all over मतलब all over the most of the covering the maximum part of the endometrium area and also the uterus part or uterine part, ठीक है। next, zonary placenta। now there is a band like structure which are where the villi are formed। इसमें क्या होगा, एक जोन रहेगा, जोनरी से पता चल रहा है एक पर्टिकुलर जोन में ही, या एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक प्रॉपर जोन होगा, वहीं पे आपका जो विलाई है वो कंसंट्रेटेड रहेगा, ज्यादातर हर जगह पे नहीं रहेगा। जैसे पिछले केस में हमने देखा कि डिफ्यूज है हर जगह पे, ज्यादातर एरिया में अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रिसाइज लोकेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट, कोटिलेडनरी। इसमें क्या होता है, दे आर पैचेस ऑल ओवर द एम्ब्रायो।
इसमें जो है आपके जो विलाई के फॉर्मेशन हमें क्या देखते हैं कि इट इज अवेलेबल इन द पैचेस, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस ऑन द एम्ब्रायो बॉडी। पैचेस के फॉर्म में मतलब थोड़ा सा एक जगह पे, फिर दूसरे थोड़ा दूर, थोड़ा जगह छोड़ के फिर दूसरे जगह पे, ऐसे करके डिफरेंट पैचेस फॉर्मेशन में ये एम्ब्रायो की बॉडी में हमें मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉटिलेडोनेट टाइप। नेक्स्ट है मेटाडिस्कॉइडल। इसमें क्या होगा, कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होगा कि कोरियोनिक जो विलाई होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही, एंडोमेट्रियम का एक पर्टिकुलर रीजन है, प्रिसाइज लोकेशन रहेगा, वहीं पे रहेगा। ठीक है, और कैसे रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क फॉर्म में रहेगा। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, पर्टिकुलर जोन में रहेगा, किसमें, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेटाडिस्कॉइडल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाडिस्कॉइडल। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, बट इन द बिगिनिंग इट प्रेजेंट ऑल ओवर। मतलब शुरू में ऐसा नहीं होता, शुरू में अगर हम देखेंगे तो ये डिस्क स्ट्रक्चर नहीं बनाता। शुरू में ज्यादातर मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्सिमम पार्ट है, उसको कवर करता है ऑल ओवर द लाइक दिस एंडोमेट्रियम इट इज प्रेजेंट, बट later on it actually changes and it form present, it restricted itself in a precise location and also in a disc-like pattern, disc-like structure. Now the last one of this type, that is your discoidal. इसमें क्या होता है, in this type the villi are formed actually in the beginning, very beginning, from a circular disc-like structure and pattern. इसमें क्या है कि जो विली है, जो कोरियोनिक विलाई है, ये बनते कहां से और कब बनते हैं, ये बहुत शुरुआत में बन जाते हैं। कहां से बनेंगे, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पहले बनता है, उसके बाद जाके ये कोरियोनिक विलाई बनता है। ठीक है, सो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नॉर्मल केसेस में हमने क्या देखा कि पहले विलाई बनेगा, उसके बाद कंसंट्रेट होगा, फिर पूरा स्ट्रक्चर प्लासेंटा बनेगा, वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसमें क्या है, पहले डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर जाके विलाई बनता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, so by this we have actually discussed most of the type of the placenta in different animals including humans. तो अगर हम सिर्फ ह्यूमन के केस पे प्लासेंटा देखें तो हमें ये जो पैटर्न है, डिफरेंट ह्यूमन प्लासेंटा को हम इस डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। ह्यूमन प्लासेंटा में क्या क्या हम कह सकते हैं, कौन सा टाइप है, हीमोकोरियल टाइप है, हीमोकोरियल टाइप है ह्यूमन प्लासेंटा, और क्या है, इट इज कोरियोनिक प्लासेंटा, कोरियन भी होता है, और ये डेसिडुएट प्लासेंटा भी है, और क्या है, मेटाडिस्कॉइडल, क्योंकि डिस्क बनाता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये मेटाडिस्कॉइडल टाइप भी है। जैसे हम देखते हैं ना, टीथ के केस में हम बात करते हैं कि होमोडोंट है, पॉलीफायोडोंट है, थिकोडोंट है, बिल्कुल वैसे ही प्लासेंटा के टाइप, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, जैसे हमने दांत टीथ के केस में देखा था कि अगर हम बोलेंगे ह्यूमन टीथ डेंटेशन कैसा है, तो हम क्या क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट बोलेंगे, पॉलीफायोडोंट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, थिकोडोंट बोलेंगे। वैसे प्लासेंटा भी अगर हम बोलेंगे ह्यूमन के केस में कैसा है, तो फिर वो क्या है, हीमोकोरियल है, कोरियोनिक है, डेसिडुएट है, और मेटाडिस्कॉइडल है। ठीक है, तो ये सारे हमारा जो प्लासेंटा का स्ट्रक्चर है और पैटर्न है, आपके ह्यूमन के केस में हमें दिखता है। नाउ we'll talk about the next thing, that is the next topic, that is extra embryonic membrane. ठीक है, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन कितना होता है, देयर आर 4 मेम्ब्रेन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। क्या क्या है, एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन, एलेंटॉइस। क्या क्या है, एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन, एलेंटॉइस। ठीक है, we'll see the diagram as well. First of all let us discuss the things. Next, first they develop, in our case the fetus, actually when it develops it forms a trophoblast found in the egg. हमने देखा है कि ये क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, and trophoblast in the cell of amniotes include reptile, birds and mammals. ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, उसके बाद जाके एमनियोट बनता है। हमने देखा था एमनियोटिक कैविटी कैसे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, एक गैप बनता है, उसी में आपका एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसमें कि एम्ब्रायो डेवलप होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था। तो ये हमें किस में दिखेगा, रेप्टाइल्स में भी दिखता है, बर्ड्स में भी दिखता है, मैमल्स में भी दिखता है। ठीक है, नाउ ईच मेम्ब्रेन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अभी हमने जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात किया, तो ये जो सारे आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक जो मेम्ब्रेन है, सारे मेम्ब्रेन अलग अलग, मेम्ब्रेन का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है,
Now the first germ layer develops in endometrium. पहला जो germ layer है वो कहाँ बनता है, कहाँ पे डेवलप होता है, that is sorry, जो पहला germ layer है वो क्या डेवलप होता है, वो होता है आपका endometrium. हमने देखा था कि गैस्ट्रुलेशन के बाद जो आपके germ layers है वो डेवलप कैसे होता है और पहले कौन सा होता है, जैसे पहले दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है. तो पहले क्या डेवलप होता है, सबसे पहले होता है एंडोडर्म. ठीक है ना. नाउ द अपर पार्ट ऑफ द एंडोडर्म डेवलप होने के बाद क्या होगा, द अपर पार्ट ऑफ द एंडोडर्म विच इज टुवर्ड्स द एम्ब्रायनल नॉब की तरफ एंडोडर्म का जो पार्ट होता है, ठीक है, एक्चुअली दैट गिव राइज टू द गट. वही वाला पार्ट क्या बनाता है, गट बनाता है. ठीक है. And then it is that part is actually from the gut part. और बोल सकते हैं कि एम्ब्रायनल जो पार्ट है आपके एंडोडर्म के जो पार्ट है जो कि आपके एम्ब्रायनल नॉब की तरफ होता है, वही क्या बनाता है, फाइनली गट पार्ट बनाता है. ठीक है. और जो लोअर पार्ट होता है एंडोडर्म का, ठीक है, along with the trophoblast, वो क्या बनाता है, वो बनाता है yolk sac. तो ध्यान से समझना है, एंडोडर्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि एम्ब्रायनल नॉब के पास रहता है, वो क्या बनाता है, वो गट पार्ट बनाता है एम्ब्रायो का. और जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे ट्रोफोब्लास्ट जो आपके एंडोडर्म के पार्ट है उसके अलोंग विद द ट्रोफोब्लास्ट एरिया और द रीजन, वो क्या बनाता है, वो बनाता है yolk sac. ठीक है. वो क्या बनाता है, yolk sac. तो दो चीज, तो मतलब एंडोडर्म के ऊपर वाला पार्ट जो कि एम्ब्रायनल नॉब के तरफ है वो बनाता है आपका that part is making your gut and the lower part is making your yolk sac. ठीक है. और क्या बनाता है लोअर पार्ट, yolk sac and all allantois. ठीक है. और क्या बनाता है, allantois का जो सारा पार्ट है वो बनाता है. ठीक है. So the point is here I think. Yeah. So the upper part of the endometrium which is towards the embryonal knob, that give rise to gut part, and the lower part of the endoderm along with the trophoblast give rise to yolk sac and all allantois. ठीक है. Now next is the yolk sac starts or it stores, actually start to store. yolk sac बन जाएगा तो क्या करेगा, start to store yolk, ये yolk स्टोर करेगा. तो yolk sac का फंक्शन क्या है, to store the yolk. ठीक है. और इंसान के केस में जो yolk sac होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, ये बहुत ही घट जाता है इसका साइज, क्योंकि हमें yolk sac में yolk जो है, क्योंकि एग में जो है yolk वो जो दूसरे एनिमल्स है, जो आपके एग लेइंग एनिमल्स है, उनको ये ज्यादा प्रिजर्व करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड all the important nutrition to the developing fetus. But in case of human being, because their placenta formation is there, so there is no need to form the yolk sac properly. तो yolk sac होता तो है लेकिन बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है, बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. Now slightly on the anterior side allantois is present. ठीक है. तो yolk sac के एंटीरियर साइड में, ठीक है, एंटीरियर साइड जो है आपके एम्ब्रायो का, उस तरफ क्या मिलेगा, हमें allantois मिलेगा. ठीक है. अब देखो जो कंप्लीट एम्ब्रायो होता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड लाइक उसके वो जो होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक लेयर के अंदर रहता है. ठीक है. और उसे हम बोलते हैं एमनियन. ठीक है. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर होता है, इट इज इनसाइड द कोरियन. ठीक है. तो फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट क्या समझना है, जो आपके एम्ब्रायो है, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है, इट इज कवरिंग द एम्ब्रायो, स्पेशली कौन सा पार्ट, एमनियन जो है. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर रहता है, ये रहता है कोरियन के अंदर. ठीक है. तो एमनियन के अंदर एम्ब्रायो, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर रहेगा, कोरियन के अंदर रहता है. ठीक है. सो दिस आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. विल सी द डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू यू आफ्टर दैट. नाउ अब yolk sac के चारों तरफ क्या होता है, इट्स सराउंडेड बाय मेसोडर्मल लाइनिंग. जो मेसोडर्म के जो आपके जर्म लेयर है उसके लाइनिंग ये क्या करता है, ये पूरा कवर करता है आपका जो yolk sac है उसको, चारों तरफ से इसको कवर करता है.
और ये जो स्ट्रक्चर है विच इज कवरिंग द yolk sac or which is surrounding the yolk sac, that particular membrane is called planchoplus. ठीक है, planchoplus. ये जो स्ट्रक्चर विच इज the structure which is covering the yolk sac, that is called, which is a mesodermal lining, it is called planchoplus. ठीक है, वो क्या है? That is an inner structure. ठीक है, that is endometrium. Planchoplus एक्चुअली में है क्या? That is the endometrium and outer inner endometrium and the outer endometrium. तो ये जो planchoplus है, mesoderm जो है पार्ट, mesoderm lining जो है, ये एक्चुअल में क्या है? It is actually formed by the inner endometrium and outer endometrium. Inner endometrium से और outer endometrium से ये बनता है. ठीक है. Now the entire structure is also covered with one more membrane that is called chorion. अब ये सारा स्ट्रक्चर, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपके जो yolk sac है, it is covered with the mesodermal lining that is actually formed by the endometrium, inner and outer part, and all the structure, and inside the amnion, the embryo is also present, and ultimately the entire structure is covered with which layer and which membrane? That is your chorion. ठीक है, कोरियन ये सारा जो स्ट्रक्चर इसको कवर करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको पूरा सराउंड करके मतलब इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द और इट इज कवरिंग द एंटायर स्ट्रक्चर. ओके, अब ये जो आपकी कोरियन है, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है. द मेम्ब्रेन कोरियन इज ऑल्सो हैविंग 2 मेम्ब्रेन. क्या क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट द yolk sac स्टोर द फूड. ठीक है, अच्छा, जो कोरियन होता है ये भी आपका 2 मेम्ब्रेन से, इसके अंदर भी अगर हम ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, इसमें भी आपके 2 लाइनिंग होता है. देयर आर 2 मेम्ब्रेन व्हिच इज एक्चुअली फॉर्मिंग द कोरियन एज वेल. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ yolk sac. पहले ही बात किया था yolk sac का फंक्शन क्या है. yolk sac का फंक्शन होता है जो आपके फूड को स्टोर करना या न्यूट्रिशन को स्टोर करना. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग फिटस और द एम्ब्रायो. ठीक है, सो अभी ह्यूमन के केस में क्या है, थोड़ा सा अलग भी है ना, क्योंकि यहाँ पे yolk sac का जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम होता है. ठीक है, सो ऐसे नॉर्मली काम क्या है, yolk sac स्टोर द फूड एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक गट. ठीक है, क्योंकि ये आपका फूड स्टोर करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक गट. ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक गट, एंड वेरी वेल डेवलप इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, और किस में सबसे अच्छा डेवलप होता है, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में. ये आपका जो yolk sac है ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है. क्यों होता है मैंने पहले भी बताया, फिर बताता हूं, क्योंकि दे आर एग लेइंग, बिकॉज दे आर एग लेइंग एनिमल्स. तो एग में जो भी फीटस डेवलपमेंट होगा तो न्यूट्रिशन जो उसे चाहिए, तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द एग इटसेल्फ. तो उसमें जो yolk sac है उसमें जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो स्टोर्ड रहता है ऑलरेडी, इसीलिए वो जो है वो आपके एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज. लेकिन इंसान के केस में क्या होता है, हमने डिस्कस किया है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड. ठीक है, नाउ एलेंटॉइस का क्या फंक्शन है, एलेंटॉइस एक्ट्स एज एक्स्ट्रा एम्ब्रायोजेनिक किडनी. एलेंटॉइस क्या काम करता है, इट इज वर्किंग एज एक्स्ट्रा एम्ब्रायोजेनिक किडनी. देखो, अब एम्ब्रायो जब डेवलप होता है अर्ली स्टेज, उस समय तो किडनी डेवलप नहीं होता, लेकिन फिर भी नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनेंगे एम्ब्रायो के बॉडी से. तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको बॉडी से निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं एलेंटॉइस. सो एलेंटॉइस इट एक्ट्स एज एक्स्ट्रा एम्ब्रायोजेनिक किडनी. तो ये क्या काम करता है, इट इज समवट वर्किंग लाइक ए किडनी. It removes the waste material from the embryo. Okay, and in case of the human being it is poorly developed. क्यों? इंसान के केस में ये बहुत कम डेवलप क्यों होता है? बार बार हम ये चीज देख रहे हैं कि जैसे yolk sac वो भी अच्छे से डेवलप नहीं है इंसान के केस में. अच्छा, एलेंटॉइस भी अच्छे से डेवलप नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा है ना इंसान के पास. So the placenta is fully capable to like exchange of gases, then supplying the nutrition and other substances, and also extracting or help the embryo to excrete all the nitrogenous waste as well. तो इसीलिए इंसान के केस में प्लासेंटा ही सब कुछ सारा काम कर देता है. इसीलिए अलग से कोई स्ट्रक्चर जैसे कि yolk sac,
एलेंटॉयस, ये सब ये जो स्ट्रक्चर्स इनकी जरूरत नहीं होता, ये होता है लेकिन बहुत ही छोटा या बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चर्स होता है, इनका छोटा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना। नाउ एमनियोटिक कैविटी हैज अ फ्लूइड, जैसे हमने बात किया था कि एमनियोटिक कैविटी कैसे बनता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एमनियोटिक कैविटी कैसे बनता है, दोनों के बीच में जो डेवलपिंग एम्ब्राय है और जो आपके कोरियोनिक जो आपके विली है या कोरियन है, उसके बीच में गैप बनता है, उसके बाद जाके उसमें क्या हमें मिलता है, कैविटी बनता है, उसी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। उसमें रहता क्या, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, विच इज सीक्रेटेड बाय एमनियोट। एमनियोट जो है वो ये फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में ये फ्लूइड सीक्रेट करता है फॉर द फीटस, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, इट इज प्रोवाइडिंग एक्वस मीडियम फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। सो एम्ब्रायो जो होता है इसी जो फ्लूइड है इसी के अंदर रहता है, एंड इट इज एक्वस फ्लूइड जिसके अंदर एम्ब्रायो डेवलप होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर हमें काफी अलग तरह के कुछ सेल्स हमें मिलते हैं। वी कैन फाइंड देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इनसाइड दिस एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोट। तो उसमें जो फ्लूइड होगा which is actually having different types of cells or the special type of cells, and those cells are known as fetal cells, ठीक है। क्यों? as they attach from the fetal body, because ये जो सेल्स है ये आपके फीटस बॉडी के साथ अटैच रहते हैं, वो सेल हमें एमनियोट में या एमनियोटिक कैविटी के जो फ्लूइड है उसमें हमें ये सेल मिलते हैं कुछ, और इसी को हम बोलते हैं फीटल सेल, ठीक है। क्यों हम फीटल सेल बोलते हैं? क्योंकि एमनियोट आपके जो फीटस बॉडी है उसी के बॉडी में जो अटैच सेल है वही हमें इसी फ्लूइड में मिलेगा, ठीक है। अब एमनियोसेंटोसिस बोल के एक प्रोसेस है, आप लोगों ने भी सुना होगा एमनियोसेंटोसिस। देयर इज अ प्रोसेस व्हाट वी डू, उसमें हम क्या करते हैं ना, हम ये जो सेल्स है, अभी जो हमने बात किया कि जो आपके फ्लूइड है जो एमनियोट है या फिर जो एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है या एमनियोट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होता है जो हम जिसको हम कहते हैं फीटल सेल, उसे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम क्वांटिटी में, इन द माइक्रोलीटर्स क्वांटिटी वी कलेक्ट इट एंड वी विल कल्चर इट इन द लैब एंड विल स्टडी, ठीक है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि अगर इज देयर एनी एबनॉर्मेलिटी इन द ग्रोइंग फिटस, हम ये पता कर सकते हैं कि जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है, जो फिटस, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है क्या या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पता कर सकते हैं कि जो ग्रोइंग फिटस है एम्ब्रायो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, इसके लिए हम ये स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या काम करता है ये, बिकॉज द एम्ब्रायो इज प्रेजेंट इनसाइड द एक्वस फ्लूइड, सो इट इज आल्सो वर्किंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। ये क्या करता है, इट्स वर्किंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एम्ब्रायो है, इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एक्वेटिक और एक्वस सॉल्यूशन मीडियम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कैन वर्किंग एज अ, इट कैन वर्क एज अ, और इट कैन function as a shock absorber, right? Now the last point what we need to discuss about the extraembryonic membrane, that is chorion acts as, chorion क्या है, ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम जो सारा स्ट्रक्चर है वो कौन कवर करके रखता है, कोरियन, ठीक है। सो कोरियन एक्ट्स एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लंग्स, ठीक है। तो अभी इनके केस में जो आपकी ग्रोइंग डेवलपिंग और ग्रोइंग फीटस है, इसके केस में तो लंग्स या कोई भी ऑर्गन अच्छे से प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो कोरियन है, द कोरियन इज एक्चुअली वर्किंग एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लंग्स। तो कोरियन यहाँ पे किसके जैसे काम करता है, लंग्स के जैसे काम करता है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था कि किडनी के जैसे कौन काम करता है, एलेंटॉइस, है ना। तो वैसे यहाँ पे जो कोरियन है वो किसके जैसे काम करता है, इट इज फंक्शनिंग एज अ लंग्स। सो लेट अस सी द डायग्राम more clear to you. So this is the diagram what represent the extra embryonic membrane, you can see here. So this is the diagram of all the extra embryonic membrane. So first of all you have to understand this is the growing fetus or the embryo, ये fetus है, embryo है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो this is, we'll talk about, ये एक जनरल डायग्राम है, इसमें हमने सारा जो भी आपकी स्ट्रक्चर हमें मिलता है हमने वो सब ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं this is the allantois, this is the allantois, ठीक है।
और इट इज ऑल्सो कवर्ड विथ, हमने क्या देखा था कि सारा स्ट्रक्चर एक अलग एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्प्लेंशियोप्लस, है ना। सो प्लेंशियोप्लस, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा आपके एंटायर स्ट्रक्चर जो है इसको हर एक स्ट्रक्चर को ये कवर करता है। तो दिस इज एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस जो है इट इज समवट वर्किंग एज ए किडनी, है ना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की हेल्प करता है। बट इंसान के केस में ये क्या होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। क्यों? प्लासेंटा हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज है वो हमें वो कर लेता है प्लासेंटा, तो हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ता अलग से एलेंटॉइस का। लेकिन एलेंटॉइस होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में, देख सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन सी, दिस इज योर yolk sac, दिस इज योर yolk sac। क्या है ये? yolk sac है। यहाँ पे भी एक अलग से जो स्ट्रक्चर है विच इज सराउंडिंग दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हमने बात किया था जो एक्स्ट्रा outer most membrane which is covering this structure also, all the structures, that is again splenchiopius, ठीक है। Now after that if you see the embryo is covered with a membrane, ठीक है, and that is called your amnion, ठीक है, this is amniotic membrane, ये amnion है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप देख सकते हो कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपका फ्लूइड फील्ड कैविटी, दिस कैविटी इज फील्ड विद फ्लूइड, दैट इज एमनियोट, ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। सो दिस एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट and inside the amniotic fluid the embryo is present and it will grow, and this amniotic fluid is an aqueous fluid, this is an aqueous fluid. Which type of fluid it is? It is an aqueous fluid inside which the embryo develops, ठीक है ना। सो हमारे इंसान के केस में हमें ये दिखेगा। नाउ हम जैसे हमने और क्या बात किया था, किसके अंदर हमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स मिलेंगे, सो यू कैन सी द रेड कलर आई हैव ड्रॉन, सो दिस सेल्स व्हाट वी कैन सी इनसाइड दिस कैविटी और इनसाइड द एमनियोटिक फ्लूइड, दैट दोस सेल्स आर कॉल्ड फीटल सेल, क्योंकि वो आपके फीटस जो है ग्रोइंग एम्ब्रायो है उसके बॉडी के साथ अटैच होता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कोरियोनिक विलाई, दिस आर द विली, कोरियोनिक विली, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, एंटायर स्ट्रक्चर जो है, इट इज कवर्ड विद व्हाट, इट इज कवर्ड विद कोरियन, ठीक है। ये किसके साथ कवर है, किसके कौन से लेयर ने इसको कवर किया है पूरे स्ट्रक्चर को, दैट इज योर कोरियन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सोमैटोप्लेस होता है, ये स्प्लेंचोप्लेस नहीं होता, ये क्या होता है, सोमैटोप्लेस। इसको थोड़ा समझना होगा आपको। जैसे आप सबको पता है, हमने बार बार क्या डिस्कस किया है कि ऐसे एंडोमेट्रियल वॉल है, मतलब अगर आप यूट्रस बनाएंगे तो इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग्स होता है, तो हम किसी एक फोल्डिंग्स को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हम थोड़ा एनलार्ज कर लिए, और हमें पता है कि वहीं पे जाके ये सेटल होता है हमारा एम्ब्रायो। तो जब एम्ब्रायो सेटल होता है तो सेटल होने के समय में हम ये हम मान सकते हैं ना कि ये एंडोमेट्रियम का लेयर है, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर वाला जो लेयर इनर मोस्ट लेयर होगा, ये आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट, तो यही लेयर है फाइनली, जो ये लेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब एम्ब्रायो यहाँ पे आके अटैच होता है, जब कोरियन में विलाई आके जब यहाँ पे ऐसे एम्ब्रायो अटैच होता है, तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है आपका एंडोमेट्रियम का, यही आके बाद में पूरे जो एम्ब्रायो को ये कवर कर लेता है, ठीक है। इट इज कवरिंग द एंटायर एम्ब्रायो, सो which includes the the inner membrane of inner membrane of the embryo and the outer membrane of the embryo, ठीक है। तो दोनों मिलके ये पूरा कोरियोनिक जो स्ट्रक्चर वो बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो एंडोमेट्रियम का जो इनर पार्ट है वो भी इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, कोरियन के स्ट्रक्चर बनने में। और कौन सा पार्ट है, दैट इज इनर एंड आउटर एंडोमेट्रियम, बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इसको आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ही है वो एक्सटेंड होके फर्दर डेवलप होके आपका ये जो कोरियन जो है आपका जो लेयर है इसको बनाता है, और उसमें एंडोमेट्रियम का जो इनर पार्ट है और आउटर पार्ट है दोनों ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और एंड the discussion what you have done about the extra embryonic membrane. So the next topic what we need to discuss, that is your parturition, and I think we will discuss about parturition in the next video lecture. So till then, take care, be safe, stay at home, bye.